करना डायरेक्ट into six classes. So what are that six classes? The first class is the oxidoreductase. Oxidoreductases. The second is transferases. The third one is the hydrolysis. Fourth one, isomerases. The fifth one is the lyses, and the sixth one is the ligases. Okay, that day I had told you, when at the end ASE word will be there, so that is enzyme. So that I had already told you. Now this classification, the major classification of this enzyme is categorizes into six. What are they? So oxidoreductases, then transferases, then hydrolyses, isomerases, lyses and ligases. Actually इनका जो नेम है वो नेम से ही हमको what will be the function of it that we can say, है ना? तो how? The first one is given, that is the oxidoreductase. So enzyme then categorizes or catalyzes oxidoreductase between two substances. Then they are called as oxidoreductase. Means here what will happen? Suppose A is the substance. आपको oxidation and reduction पता है. So when either oxygen is utilized or hydrogen is removed, that process is called as oxidation. And when the hydrogen is utilized or oxygen is removed, then it is called as reduction. So when both will be takes place at the same time, so that such type of reaction we call it as redox reaction. So definitely for redox reaction, the enzyme which will act or in the presence of that enzyme when the redox reaction takes place, so that is nothing but the oxidoreductase enzyme. Okay, so if I will give one example, suppose I am giving here example, when manganese oxide is reacted with the carbon. Okay, so what will be the product? The product will be Mn plus CO. So here what happened with this manganese oxide and the carbon? So here from this manganese oxide oxygen is removing and so it is converting into manganese. मैंगनीज ऑक्साइड जो था तो उसमें से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है. अगर वो ऑक्सीजन निकलता है तो कौन सी प्रोसेस होगी? अब भी मैंने क्या कहा था कि अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होगा तो वो ऑक्सीडेशन रहेगा, और ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो हियर दिस मैंगनीज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना? इसका क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा. व्हाट अबाउट दिस? तो यहाँ पर जो है क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. सो वी कैन राइट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो इफ here reduction takes place of what? Manganese oxide, and the oxidation is going on of what? Carbon. So when such type of reaction takes place, and in such a reaction if the enzyme that will work, that is called as oxidoreductase enzyme.
lecture घेते हैं. Then these enzymes, they can be grouped mainly in a different ways. So these three main groups can be explained in order to get the simple expressions. The first is oxidases, means they are categorized again into three types. Okay. These are categorized into three types. One is oxidases. The second is anaerobic, dehydrogenase, and the third will be hydroperoxidases. Again, one more is given, that is the aerobic dehydrogenase. Okay, so here these enzymes, they are grouped in many different ways. The three main groups can be explained in order to get the simpler expressions, and they are, the first one is given, that is the oxidases. So the enzyme which will use oxygen. Okay, so when the enzyme will use oxygen as a hydrogen acceptor, then they are called as oxidases enzymes. So we can give some example of it. Tyrosinase enzyme or cytochrome oxidase enzymes, which are which participate in the respiration. Again, uricase enzyme. So these are some examples of the oxidases enzyme. Okay. Then anaerobic dehydrogenases enzymes. So enzymes which will use other substances as a hydrogen acceptor. अगर अदर सब्सटेंस का यूज करते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर, तो देन दे आर कॉल्ड एज एनाएरोबिक dehydrogenases enzymes. So can we give some example of it? So yes, malate dehydrogenase enzyme, then succinate dehydrogenase enzyme, lactate dehydrogenase enzyme. These are some examples of this anaerobic dehydrogenase enzymes. Then the third is hydroperoxidase enzyme. तो यहाँ पर जो है, जो एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका यूज करेगा एज अ सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के तौर पर अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करता है, तो देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपेरोक्सिडेज एंजाइम. पेरोक्सिडेज एंजाइम उसका एग्जांपल है, या कैटालेज एंजाइम जो है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इट. देन एरोबिक. अब एरोबिक जो है, तो एरोबिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम में यहाँ पर जो है, तो एरोबिक कहने के बाद में which will be takes place in the presence of oxygen. So the enzyme which will use either oxygen or another substrate as a hydrogen, या तो वो ऑक्सीजन का यूज करेगा या फिर अदर हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है, अदर सब्सटेंस को एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर अगर वो यूज करता है, तो देन दे आर कॉल्ड एज एरोबिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स. तो एग्जांपल्स जो है, तो डी एंड एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस एंजाइम, then xanthine oxidase enzyme and the aldehyde oxidase enzyme, they are some examples of these aerobic dehydrogenases enzymes. Okay, here these are again categorized into two another subgroups. So they are oxygenases and the
हाइड्रोक्सीलेसेस, ऑक्सीजनेसेस एंड हाइड्रोक्सीलेसेस, ठीक है। तो ऑक्सीजनेसेस and second I am saying hydrogenases. So they are again categorized into these two. So oxygenases means the enzyme which will act on single hydrogen donor. If they are acting on single hydrogen donor with incorporation of oxygen, यानी ऑक्सीजन की हेल्प लेकर जो है जब वो कोई एंजाइम जो है तो सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन डोनर पे वर्क करता है, then it is called as oxygenases enzyme. What about the hydroxylases enzyme? तो एंजाइम which act on paired donor, जब वो पेयर डोनर जो रहेगा तो उसके साथ में उसके ऊपर में एक्ट करेगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन जो है तो एक डोनर का काम करेगा। तो इस तरह से अगर कोई एंजाइम वर्क करता है तो देन दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सीलेसेस एंजाइम। So the example of hydroxylases enzyme is steroid hydroxylase enzyme or phenylalanine 4-hydroxylase enzyme. These are some example of it. What about the oxygenases enzyme? So tryptophan oxygenases enzyme is the example of it. Do you understood? I am repeating this topic again. That's why that day I had told you I want to take this topic separately. Okay, so here these enzymes, they are categorized into 6 classes. The first class just now we had seen. What was that? That class was oxidoreductases enzyme. तो सिंपल देखो कैसा है कि लिखना अलग होता है और समझना अलग होता है। तो ये ध्यान में रखना कि जो रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस एंजाइम को हम कहेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। लेकिन यहाँ पर जो है तो हम जब उसको डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्राइब करते वक्त हम क्या लिखेंगे कि एंजाइम catalyzing the oxidoreductions between two substrate. So then it is called as oxidoreductase enzyme. So these enzymes, they can be grouped into many different ways. The main groups can be explained here. So that we had seen just now. Oxidase enzyme, first one, the enzyme which is use oxygen as a hydrogen acceptor, they are called as oxidase enzyme. The example of it are the tyrosinase enzyme, cytochrome oxidase enzyme, uricase enzyme. These are some example of it. Then anaerobic dehydrogenase enzyme. तो anaerobic dehydrogenase enzyme, तो इसमें enzyme which will use some substance as hydrogen acceptor. So they are called as anaerobic dehydrogenase enzyme. So examples of it are the malate dehydrogenase enzyme, then succinate dehydrogenase enzyme, lactate dehydrogenase enzyme. These are some example of it. After that, hydroperoxidase enzyme. So the enzyme which use hydrogen peroxide as a substrate, they are called as hydroperoxidase enzyme. The examples of it is the peroxidase, then catalase. After that, aerobic dehydrogenase enzyme. So the enzyme will use either oxygen or another substrate as a hydrogen acceptor. Then they are called as aerobic dehydrogenase enzyme. The example of it are D and L amino acid oxidase enzyme, xanthine oxidase enzymes, and the aldehyde oxidase enzymes. After that, again 2 more. So oxygenases enzyme, which act on single hydrogen donor with incorporation of oxygen. So example is tryptophan oxidase enzyme. Then second one is the hydroxylase enzyme, the enzymes which act on paired donor,
incorporation with oxygen into one donor. So then they are called as hydroxylase enzyme. The examples of it: steroid hydroxylase enzyme, phenylalanine 4-hydroxylase enzyme. So this is about the first classification. Do you understood? समझ में आया है बेटा? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the second is the transferases enzyme. अब देखो ट्रांसफरेसेस यानी क्या काम करता है ये, तो ये क्या काम करेगा? ट्रांसफर करेगा. तो सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफरिंग एंजाइम. तो दे कैटेगराइज द ट्रांसफर ऑफ सम ग्रुप. कुछ भी यानी कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा, सपोज अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ऐसे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है तो उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा. ठीक है, तो वो जो ग्रुप या फिर रेडिकल जिसको आर जो है तो मिथिल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल जब ट्रांसफरिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेसेस एंजाइम. तो यहाँ पर जो है ट्रांसफरेसेस एंजाइम, इसको हम अलग अलग इसमें एग्जैक्टली which group that particular जो ट्रांसफरेसेस एंजाइम है तो वो कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करने वाला है, इसके ऊपर से जो है तो इसे कैटेगराइज किया गया है. ओके, तो लेट्स सी नाउ. आई एम डिस्क्राइबिंग हियर. Ma'am, functional group na? Second one. Functional group na? Functional. Yes, transferases group. Ma'am. Yes. Yes. Ma'am, functional group मतलब ट्रांसफर होगा ना? Functional group ट्रांसफर होगा ना उसमें? हाँ हाँ, तो जो हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ चुके हैं ना पहले, तो वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो है, तो जैसे सिर्फ अगर वो हाइड्रोजन को भी ट्रांसफर कर सकता है या फॉस्फेट ग्रुप को भी ट्रांसफर कर सकता है या अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है, तो एग्जैक्टली कौन से ग्रुप को वो ट्रांसफर करेगा उस हिसाब से उसके नेमिंग दिए हैं. 1 मिनट. So these transferases, they are categorized into different groups that I am writing here. So actually they are categorized into 4 groups, but I am again saying which group they are transferring on basis of it, they are again classified. Okay. The first one I had written, that is the transphosphorylases. The second one, I am going to explain it. Firstly, I am writing this transglycosidases. The third is transaminases. And the fourth, transacylases. Okay, so here only these 4 groups are given, which are the transphosphorylases. The second is transglycosidases. The third is transaminases, and the fourth one is transacylases. ठीक है, तो let's see. तो transphosphorylases, phosphorylation यानी क्या होता है? phosphorylation means जब एटीपी जो है तो इसका कन्वर्शन एडीपी में होगा. तो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए देखो, एटीपी then get convert into ADP plus IP, then phosphorylation process will be there. Actually phosphorylation यानी ADP और IP का कन्वर्शन जब ATP में होता है उसको हम phosphorylation बोलते हैं.
तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन वापस से होने के लिए ट्रांसफरिंग किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ जब एटीपी है तो एटीपी का कन्वर्शन एडीपी और आईपी में हो रहा है, तो ऐसे समय में जो एंजाइम रहेगा तो उसे कहा जाएगा ट्रांसफॉस्फोराइलेसिस एंजाइम। डू यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. तो इसके एग्जाम्पल जो है तो हेक्सोकाइनेज, फॉस्फो ग्लूकोमेट्स या फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, these are some examples in which this ATP get converted into ADP and IP. IP means inorganic phosphate, ADP means adenosine diphosphate, ATP means adenosine triphosphate. Okay, then ट्रांसग्लाइकोसाइडेज, तो यहाँ पर ट्रांसग्लाइकोसाइडेज मीन्स किसका ट्रांसफरिंग होगा, तो डेफिनेटली ग्लाइकोजन का ट्रांसफरिंग होगा। तो अगर ग्लाइकोजन का ट्रांसफरिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट। देन ट्रांस अमाइनेसेस, अमाइन ग्रुप जो है, तो अमाइन ग्रुप NH2 जो होता है अमाइन ग्रुप, तो उसका जब ट्रांसफरिंग होगा तो उसे कहा जाएगा ट्रांस अमाइनेसेस एंजाइम। तो इसके एग्जांपल ग्लूटामेट पायरुमेट ट्रांस अमाइनेज एंजाइम है, एस्परेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, these are some examples of it. Then what about the trans acylase enzyme? तो कोलिन एसिटिल, जब एसिटिल ग्रुप को जो है ट्रांसफरिंग किया जाता है तो देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांस एसिलेज एंजाइम। तो ट्रांस एसिलेज एंजाइम के एग्जांपल जो है तो कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, या एसिटो एसिटेट ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, अमीनो एसिड ट्रांस एसिटिलेट एंजाइम, these are some examples of it. So do you understood or not? Yes, Understood, ma'am. one more we can write here, the fifth one, that is the transmethylase. So here when the methyl group will get transferred, then that enzyme will be transmethylase enzyme. Let's recollect again one time. So what I said, the second group of this enzyme is the transferases enzyme, or we can say they are the transferring enzyme. These transferring enzyme, they will transfer particular functional group from one radical to another radical, ठीक है, or from one substrate to another substrate, we can say like that. So they are grouped into 5 categories. Trans-phosphorylases enzyme, in which this ATP will convert into ADP and IP. Then trans-glycosidase enzyme, in which glycogen means definitely the carbohydrate group will get transferred out. Third is trans-aminases enzyme, in which the amino group will get transferred. Then trans-acetylase, so here acetyl group will get transferred, and when the methyl group will transfer, then it is called as transmethylase enzyme. So can we recollect the examples of all this? So the example of trans-phosphorylases enzyme is hexokinase. After that, phosphoglucomutases enzyme, then phosphoglycerate kinase enzyme. उसके बाद में ट्रांसग्लाइकोसिडेज में phosphorylase enzyme is the example of it. Transaminases के जो examples है, they are the glutamate, pyruvate transaminase enzyme, aspartate amino transferase enzyme. These are the example of it. And what about the trans-acylase? So in trans-acylase, choline acetyl transferase, acetoacetate, trans-acetylase, amino acid trans-acetylase. These are some example of it. And the last one is the transmethylase. So when the methyl group will transfer. Okay. So this was the second group. Now
comes towards the third group. What is that? Hydrolysis. So enzymes this catalyzing hydrolysis of either ester or ether or peptide or glycosyl or acid anhydride by addition of water. Actually हाइड्रोलाइसिस दिया है ना, हाइड्रोलाइसिस यानी जो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे हम ध्यान में रखेंगे। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जब कोई भी रिएक्शन में ऐड होगा, कौन ऐड होगा? H2O ऐड होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। और वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम रहेगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस एंजाइम। समझ में आ रहा बेटा? तो ये सिंपल इसमें अपने ध्यान में रखने का। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किसका हो सकता है? तो कोई भी सबस्ट्रेट का हो सकता है, मे बी ईस्टर रहेगा, मे बी इथर रहेगा, मे बी पेप्टाइड रहेगा, ग्लाइकोसिल रहेगा या एसिड अनहाइड्राइड रहेगा, किसी भी इस सबस्ट्रेट का जो है तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ठीक है, तो the group which will include extracellular digestive enzymes and many intracellular enzymes are present in this group. तो इसमें जो है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद में कई इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो है दे आर आल्सो इंक्लूडेड हियर। तो एंजाइम व्हिच विल एक्ट ऑन द ग्लाइकोसिल कंपाउंड्स, दे आर द बीटा गैलेक्टोलेज एंजाइम, देन बीडी गैलेक्टोसाइड एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हम एग्जांपल दे सकते हैं। जो एंजाइम जो है तो जो पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करते हैं, तो उनके एग्जांपल बोले तो पेप्सिन। पेप्सिन ये जो एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, स्टमक में सिक्रेट होता है। उसके बाद में रेनिन नाम का एंजाइम जो कि हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का काम करता है। देन काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, काइमोट्रिप्सिन गेट कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन एंड दिस ट्रिप्सिन विल रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये सब जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट होने वाले एंजाइम के नेम्स। ओके, इसके अलावा जो है तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस एंजाइम, हिस्टेरेसिस एंजाइम में लाइपेज जो कि फैट का डाइजेशन करवाता है, फॉस्फेटेज एंजाइम है, सल्फेटेज एंजाइम है। देन अमाइडेसिस एंजाइम में यूरिएस एंजाइम, अर्जिनेज एंजाइम, ग्लूटामिनेट एंजाइम, these are the some example of it. Then hydrolytic deaminases एंजाइम में guanine deaminase एंजाइम ये एक एग्जांपल होता है। मोनोमेरिक जो है तो मोनोमेरिक में राइबोन्यूक्लियस, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये इसके एग्जांपल आते हैं। ओलिगोमेरिक में आते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, देन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो ये सब जो है ये एग्जांपल्स हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस परफॉर्म करने वाले हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के बारे में। तो फिर से मैं इनके एग्जांपल बताती हूँ हाइड्रोलिसिस एंजाइम का। तो ये तो समझ गया कि ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके एग्जांपल हम क्या बताएंगे कि सबसे पहले द एंजाइम्स व्हिच विल एक्ट ऑन द ग्लाइकोसिल कंपाउंड्स, तो वो कौन कौन से हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज, सॉरी नॉट गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइड। उसके बाद में जो है एंजाइम जो पेप्टिड बॉन्ड पे एक्ट करते हैं तो पेप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन, दे आर द एग्जांपल ऑफ इट। देन हिस्टेरेसिस एंजाइम तो वो है लाइपेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, देन सल्फेटेज एंजाइम। देन अमाइडेसिस जो है तो अमाइडेसिस में आएगा यूरिएज एंजाइम, अर्जिनेज एंजाइम और ग्लूटामिनेज एंजाइम। देन हाइड्रोलिटिक डियामाइनेसिस में आ जाएगा ग्वानिन डियामाइनेज एंजाइम। ठीक है, मोनोमेरिक जो एंजाइम्स है दे आर द राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम।
ऑलिगोमेट्रिक में आएगा एसिटिल कोएंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स। ठीक है, ये हो गए हमारे थर्ड ग्रुप के बारे में। नाउ लेट्स सी अबाउट द आइसोमरेसिस। तो डू यू नो व्हाट इज आइसोमराइजेशन? आइसोमराइजेशन क्या होता है या आइसोमर्स क्या होता है? तो आइसोमर्स मींस जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है तो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं ब्यूटेन लेती हूँ, ब्यूटेन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन? C4H 2n+2 यानी 10, ठीक है, ब्यूटेन C4H10। ये C4H10 ये क्या हुआ? दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हम इसको अलग अलग वे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ पहले। तो C4 और ये H10 है ना? लेकिन इसको जो है तो मैं अलग वे से ले सकती हूँ, तो डेफिनेटली तो हियर आई एम ड्राइंग द अनदर स्ट्रक्चर H if you will count to see 1 2 3 4 carbon are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So here the molecular formula is same but the structural formula is different. So when such thing is occur, then they are called as isomers of each other. इनको आइसोमर्स कहा जाता है। तो आइसोमर्स आर दोस which are having same molecular formula but the structural formula is different, so they are called as isomers. अब यहाँ पर ये जो आइसोमर्स है तो ये आइसोमर्स की प्रोसेस जो होती है दैट इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। और वो आइसोमराइजेशन होने के लिए the enzymes which are required they are called as isomerases enzyme। उनको हम आइसोमरेसेस एंजाइम कहेंगे। डू यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो यहाँ पर जो है कैटेलाइजिंग, इंटरकन्वर्सेबल ऑफ ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर रेसिमेसेस एंड एपिमेरेसेस ये एक कैटेगराइजेशन है जिसके एग्जांपल एलेनिन, रेसिमेस ये इसका एग्जांपल है। देन सीस ट्रांस आइसोमराइजेस, तो सीस ट्रांस आइसोमराइजेस इसमें इसका एग्जांपल है रेटिनिन आइसोमरेज एंजाइम। देन एंजाइम कैटेगराइजिंग इंटरकन्वर्सेबल ऑफ अल्डोज एंड कीटोन्स, अल्डोज और कीटोन्स को जो है तो कन्वर्ट कराते हैं, तो वो है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, डी ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट, देन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये जो है ये इसके एग्जांपल्स। अगेन अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि आइसोमराइजेस एंजाइम दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर आइसोमराइजेशंस। तो एंजाइम दे में बी कैटेगराइजिंग यानी ब्रेकिंग करने का काम करेंगे और इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स का काम करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स जो है तो 3 एग्जाम्पल्स, और इट इज कैटेगराइजेस इनटू 3 ऐसा बोल सकते हैं। एक है रेसिमेसेस एंड एपिमेरेसेस, तो एलेनिन, रेसिमेस इसका एग्जाम्पल है। सेकंड है सीस ट्रांस आइसोमराइजेस, तो इसका एग्जाम्पल है रेटिनिन आइसोमरेज। उसके बाद में एंजाइम कैटेगराइजिंग इंटरकन्वर्शन ऑफ अल्डोज एंड कीटोन्स, तो इसके एग्जाम्पल आएगा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, तो जब जैसा डी ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा तो वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसका एक जो है तो एग्जाम्पल्स है। देन नेक्स्ट वन कौन सा है अपना? लाइसिस।
अब लाइसिस का मतलब क्या होता है कि जो ब्रेकिंग करवाएगा, और लाइगेस का मतलब क्या होता है, जो ज्वाइन करवाएगा। तो ये ध्यान में रखना, लाइसिस लाइसिस जब वर्ड आएगा ना तो वो ब्रेक करने का काम करेगा। तो एंजाइम्स दैट कैटेगराइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट में से एक ग्रुप जो है, तो जब वो रिमूव होता है, मे बी मैकेनिकल वे अदर देन हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड जो है तो वो एज इट इज रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एज लाइसिस। तो यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होगा, फॉर एग्जांपल जो है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यहाँ पे ये जो है तो एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और इसमें जो है तो डबल बॉन्ड बना हुआ है, आए ध्यान में। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अगर एज इट इज रहता है, ये कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड जो है, तो उसको डिस्टर्ब ना, यानी जो प्रोडक्ट रहेगा तो वहां पर डबल बॉन्ड एज इट इज रह रहा है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइसिस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम क्या देंगे, अल्डिहाइड लाइसिस एंजाइम। तो अल्डिहाइडेज लाइसिस एंजाइम का एग्जांपल है अल्डोलिस एंजाइम। उसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन लाइसिस एंजाइम जो है, तो इसका एग्जांपल है फ्यूमरेज एंजाइम। तो ये फ्यूमरेज एंजाइम, अल्डोलेज एंजाइम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आया ध्यान में बेटा, ठीक है। अब लास्ट बचा है दैट इज द लाइगेसिस। अब लाइगेसिस का मतलब क्या बताया मैंने, ज्वाइन करना, ठीक है। तो एंजाइम्स कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर, जब वो दो कंपाउंड्स जो है तो उसको टुगेदरली यानी ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है जब कपलिंग होता है तो टू द ब्रेकिंग ऑफ यहाँ पर पायरोफॉस्फेट बॉन्ड जो होता है एटीपी में, या इसी तरह से कुछ अलग कंपाउंड में, तो उसका ब्रेकिंग होगा और वो ब्रेकिंग होकर ज्वाइन होगा। तो इस तरह से अगर होता है तो दैट इज लाइगेसिस एंजाइम। तो एंजाइम्स कैटेगराइजिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड जो बनता है, तो वो सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम है, जो क्रेब्स साइकिल में आप जो है इसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इनके जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो है, जो क्रेब्स साइकिल में प्रेजेंट होता है, तो वो इसका एग्जांपल है। दूसरा, एंजाइम कैटेलाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो है तो उसको फॉर्म करने वाला, जैसे कि ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम, ये उसका एग्जांपल है। तीसरा जो है तो एंजाइम कैटेगराइजिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जो लाइगेसिस है, लाइगेसिस का मतलब होता है ज्वाइन करना। तो एंजाइम कैटेगराइजिंग लिंकिंग टुगेदर, ठीक है, ऑफ टू कंपाउंड्स coupled to the breaking of pyrophosphate bond in ATP or some similar compounds. So examples of it, the enzyme categorizing formation of catalyzing formation of carbon and sulfur bond. So the example of it is succinate thiokinase enzyme. Then enzyme which will catalyzing formation of carbon and nitrogen. So example of it is glutamine synthetase enzyme. And when the enzyme catalyzing formation of carbon and carbon bond, the example of it is acetyl coenzyme A carboxylase enzyme. So this is the classification of enzymes. Do you understood, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So what is the categorization of enzyme? फटाफट बोलो। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, Reductase, एंजाइम हाइड्रोलाइसिस transferases, hydrolysis, एंजाइम,
Lysis enzyme and Isomerization. Lysis. Lysis. lysis enzyme. Okay. Yes, ma'am. Okay. So then tomorrow we will see. Most probably I will take your class at 10 o'clock. Okay. Because my son is having examination from today to continue. It will be continue. And that examination definitely is very important, and my laptop is not working. So I will take your class sharply at 10. You know my punctuality. As today it was due to mismanaging, so I was late, and so there was a problem. So be regular in your time. Okay. Take care. Thank you. Have a nice Thank day. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Okay, beta.